एंड इफ़ यू राइट टू सुपर प्रॉफ्स आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। अदरवाइज सुपर प्रॉफ्स का जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर ये कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट सेट ऑफ वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ऑल द मॉक टेस्ट डिस्कशन। बाय द वे ये वो वाला मॉक टेस्ट है जो हमें आईसीएसआई ने ऑफिशियली दिया है सीएसईबीटी के लिए। तो इसमें से जो है काफ़ी कोर्सेज आपके विल बी कवर्ड। सो नाउ विल स्टार्ट। Mock test questions for business communication. So the best way to study for these will be if we cover the course, and then if we cover all these questions. So let's start. First question of this mock test you can find on the ICSI website. Okay, and it is very first question, very first mock test. Proverb: birds of a feather flock together. Now this is a proverb, so basically it doesn't have to mean anything literally, but it stands for a different meaning. And here the answer is people of like character come together. How you can remember this is birds of a feather, meaning similar characteristics. Okay, meaning similar characteristics flock together. मतलब क्या है कि birds जिनकी characteristics similar हैं, they flock together, they remain together. यही इसका एग्जाम्पल का में आप मतलब देखेंगे तो यही है, पीपल ऑफ लाइक कैरेक्टर कम टुगेदर। ठीक है, तो इसलिए ये जो करेक्ट आंसर है इसमें सी है। नेक्स्ट हम बात करें, फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन ऑफ द पार्ट्स may contain a mistake. Identify that part and select the appropriate answer. अब क्या है इसमें, ये एक सेंटेंस है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वी हैव डिवाइडेड वन सेंटेंस इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, ऑलराइट, and in one of these parts there is a mistake. You have to identify that which of these options is incorrect. This is 6 prototype in hospitals in India of each device are now being tested. Now, as you can see, first of all, the number with this, noun prototype is a noun. Okay, and this is a singular noun. Right, prototype is a single word. So if it is one, in that case you will say prototype, one single. However, because the number identifies here that it is 6, it is more than one. So you have to use the noun form which is plural. ठीक है, प्रोटोटाइप सिंगल नहीं है, यहाँ पे 6 प्रोटोटाइप्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए प्रोटोटाइप्स। ठीक है, और वैसे भी अगर आप बाकी सेंटेंसेस देखेंगे, ऑल द अदर सेंटेंसेस आर करेक्ट। इन हॉस्पिटल्स इन इंडिया ऑफ ईच डिवाइस आर नाउ बीइंग टेस्टेड। इसलिए फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट वैल्यू इसकी इनकरेक्ट है। Now the third question says outsourcing. What does outsourcing means? देखिए वर्ड में क्या है, out and source. Source मतलब you get something from here. ठीक है, outsourcing मतलब you get something, and out मतलब कि बाहर। ठीक है, जो आपकी एंटिटी है उसके बाहर। So what does it mean? देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग goods and services involving financial, commercial and industrial aspects. Providing का मतलब है कि आप किसी को देते हैं, ठीक है, लेकिन सोर्सिंग में जो मैंने बोला इसका मतलब लगता है कि you get something, तो ये तो नहीं होगा। The commercial, next option है, the commercial processes involved in promoting and selling and distributing a product or service. So this has got nothing.
Again, here also you are providing, right? You are promoting, selling, or distributing. You are not getting anything. Okay. Let's look at option C. Contracting out selected functions or activities of an organization to other organization. Okay. What you're doing, you are giving the task out somewhere. Okay. That can do that work more efficiently. And in return, what you are getting is you are getting the work done. ठीक है. आप जो आपके काम है उसको बाहर दे रहे हैं किसी और को ताकि आपका जो काम है वो हो जाए. कि आप अपने selected functions और activities को you are sourcing them out, you are contracting them out. So therefore this is the correct option. Okay, because out means कहीं बाहर and sourcing means you are getting something. Okay. And just to confirm, let's also look at the fourth option. Fourth option कहता है business or government activity that is purposely designed to stimulate invention and innovation. तो ये तो बिल्कुल भी related नहीं है. ठीक है. Outsourcing का मतलब answer is C. Question number 4 says a dash is used to end a declarative sentence, a sentence which is not a question or an exclamation. मतलब देखिए क्वेश्चन को जब आप एंड करते हैं तो यू यूज क्वेश्चन मार्क. ठीक है. एक्सक्लेमेशन को एंड करते हैं तो आप यू यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट. देन दिस डेक्लरेटिव सेंटेंस मीनिंग अ वेरी सिंपल सेंटेंस. ठीक है. ऑल दीज यहाँ पर जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सारे एग्जाम्पल्स जो हैं दिस इज अ ऑल दीज आर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. ना इसमें कोई स्पेशल लेट्स से सरप्राइज या शॉक वाला फीलिंग है या यू नो कोई इमोशन का फीलिंग नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ है. सो नॉर्मल सेंटेंसेस and you all know on normal sentences जो हैं we end in full stop. So the correct answer is full stop. ठीक है. आगे देखते हैं. Question number 5. In dash, several people can talk to each other and see each other on the television screen simultaneously. I think the new normal जो post COVID situation है because of COVID, इसका आंसर सब लोगों को बहुत ही आसानी से पता है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. चाहे आप जूम की बात करें, चाहे आप हैंगआउट्स की बात करें, चाहे आप गूगल मीट की बात करें, राइट. किसी भी सॉफ्टवेयर की आप बात करें, किसी भी सॉल्यूशन की बात करें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है. इसके अंदर कॉन्फ्रेंसिंग मतलब मल्टीपल पीपल. ठीक है. वीडियो या टेली मतलब ओवर ऑडियो या विद वीडियो यू कैन डिस्कस. ऑलराइट. तो इसका आंसर इज ए. अच्छा एक बार ये सब की बात करें. मल्टीमीडिया का क्या मतलब होता है? मल्टीमीडिया स्टैटिक इमेजेस. ठीक है. कि अलग अलग टाइप का, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे यू नो ऑडियो फाइल्स हो, चाहे वीडियो फाइल्स हो, बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया फाइल्स. ठीक है. इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो गिफ वगैरह कुछ भी हो सकता है, दोस फाइल्स. ठीक है. बट स्टैटिक मतलब आप एक बार भेज चुके हैं. फैक्स, फैक्स आज की डेट में कह सकते हैं थोड़ा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है. पहले प्रीवियसली काफ़ी यूज़ होता था बिफोर यू नो कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. इससे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसका कॉपी स्कैन करके किसी भी नंबर पे जिसके पास भी फैक्स होता है उसके नंबर पे आप भेज सकते थे. ठीक है. एंड वॉइस मेल इज फॉर्म ऑफ मेल बट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो नोट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं choose the appropriate combination of articles to fill the two blanks in each of the sentences given below. अब देखिए हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, हमने ये थ्योरी में भी पढ़ा था, तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द. ए होता है जहां पर भी आपकी अनस्पेसिफिक कोई है. ठीक है. मतलब आपको पता नहीं है कि आप क्या किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, जनरल बोल रहे हैं. ठीक है. और ए तब आएगा जब इसके बाद का जो नाउन है दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट. ठीक है. अगर यही नाउन वोवल के साथ स्टार्ट होगा तो फिर क्या आएगा? एन. ओके. एंड द जो है यू यूज दिस विद प्रॉपर नाउन्स. ठीक है. जैसे किसी का नाम है या किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेशल लेट्स से किसी चीज की बात कर रहे हैं, then you use the. So let's take this question. Question कहते हैं it is not at all unusual for dash editor to tamper with writer's manuscript.
है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रखा है कि एडिटर, कोई भी एडिटर की बात कर रहे हैं हम, किसी स्पेसिफिक एडिटर की बात तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और एडिटर जो नाउन है, इस नाउन के पहले ये नाउन स्टार्ट होता है आपके एक वॉवल से, राइट। ए ई आई ओ यू, ई है तो वॉवल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन, एन एडिटर, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी स्पेसिफिक एडिटर की बात नहीं कर रहे, जनरली एडिटर्स, सारे एडिटर्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा अ या एन। और क्योंकि जो नाउन है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, तो करेक्ट आंसर इज एन, ठीक है। अब ये देखिए तीनों ऑप्शन में एन दे रखा है, तो द सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इट इज नॉट एट ऑल अनयूजुअल फॉर एन एडिटर टू हैम्पर विद राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट। क्या आपको पता है किस राइटर की बात हो रही है? नहीं, किसी भी, मतलब अगेन आप बात कर रहे हैं किसी भी जनरल राइटर की, ठीक है, कोई स्पेसिफिक राइटर की बात नहीं कर रहे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका ए या एन में से आएगा, क्योंकि जनरल वाला आर्टिकल चाहिए आपको, और क्योंकि राइटर में डब्ल्यू या आर की जो साउंड है दैट इज अ कॉन्सोनेंट, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या चूज करेंगे, अ, ठीक है। तो हमारा आंसर ए में एन एंड देन अ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a well written dash delivers the most important information without the recipient even having to open the email। अब बात कर रहे हैं ईमेल की, ठीक है। तो ईमेल में आप जब सबसे पहले देखेंगे, आपने ईमेल देखा होगा, आपको जब मेल बॉक्स के अंदर ही होते हैं तो आपको देखता है एक तो नाम, ठीक है, और फिर जो टॉपिक देखता है दैट इज योर सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट लाइन अच्छे से लिखी हुई होगी तो आपको ईमेल खोले बिना ही एटलीस्ट या पता चल जाएगा कि ईमेल किस बारे में है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट, किस चीज के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस ईमेल की। सो देयरफॉर द आंसर इज सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। अब आगे हम लोग ईमेल की बात करें, जैसे जब आपने खोला एक बार ईमेल, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं सैल्यूटेशन, मतलब जब आप किसी को एड्रेस करते हैं कि डियर मैम, डियर सर, किसी का नाम बोलेंगे, दैट इज सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद मैसेज, जो भी आपका मैसेज की बॉडी रहती है जहाँ पर आप सारी चीजें डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, दैट इज योर मैसेज। सो द आंसर इज सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन की इनफैक्ट क्वालिटी ही ये होती है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए कि आपका ईमेल किस बारे में है, ठीक है। Next question is, any asset that is pledged as security for a loan instrument is called। Basically, आपने सुना होगा कि आपको जैसे अगर मान लीजिए एक पर्सनल लोन चाहिए, तो किस चीज के अगेंस्ट मिलता है, ठीक है। या तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट होती है कि भाई आप हिस्टोरिकली आप हमेशा पैसा वापस कर देते हैं, या फिर आपका बैंक अकाउंट से वो डायरेक्टली पैसा निकाल लेते हैं जहाँ से वो रिकवर कर लेंगे, या फिर कई चीजें जैसे कि एक कोलैटरल, मतलब कोई भी एसेट है आपके पास, जैसे हाउस मान लीजिए, प्रॉपर्टी है, या गोल्ड है, राइट, या किसी स्पेसिफिक पर्सन की गारंटी है, ऑल दैट इज कॉल्ड कोलैटरल, जिसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, एनी काइंड ऑफ लोन, ठीक है। तो इन चीजों को हम कोलैटरल बोलते हैं। एनी एसेट दैट इज प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन, ठीक है, कि लोन वापस अगर आप नहीं कर पाए तो कैसे बैंक अपनी रिकवरी करेगा, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब आपको कुछ देना है, यू आर लाइबल टू पे। आपने किसी से लोन लिया तो यू आर लाइबल टू पे दैट अमाउंट, सो दैट लोन बिकम्स योर लाइबिलिटी, ठीक है। चाहे वो कंपनी हो, चाहे आप इंडिविजुअल की बात करें। शेयर मतलब यू ओन अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है फंड्स, ठीक है। आपने कोई पैसा लगा रखा है कंपनी में, कैपिटल वो वाला फंड्स हैं जहां से आपकी बिजनेस जो है, your business will run, that is capital. So therefore asset that is pledged as security for a loan is collateral. Next we have, given
antonym for the. All right, so we'll take a brief break here, and I want to know, are there any questions so far that you have faced? अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अभी पूछें. आप चैट पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर रेज हैंड करके पूछ सकते हैं. जस्ट वांट टू इंश्योर कि आप लोग बात सुन रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं ढंग से, आपको समझ आ रहा है सब कुछ. किसी को कोई इश्यू नहीं है? दीक्षांत सक्सेना बोल रहे हैं नो क्वेश्चन येट. सतीश बोल रहे हैं नो क्वेश्चन. कोलैटरल मींस, कोलैटरल पार्ट मैंने अभी अभी समझाया था. जैसे जब आप कोई लोन लेते हैं तो बैंक को या जो भी इंस्टीट्यूशन आपको ये लोन दे रहा है उसको एक गारंटी का फॉर्म चाहिए होता है कि किस चीज के अगेंस्ट, अगर मान लीजिए आप पैसा वापस नहीं कर पाए तो वो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा. तो उसको इंश्योर करने के लिए दे नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी या सम सॉर्ट ऑफ गारंटी कि उनका पैसा वापस आ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड कोलैटरल. Is that clear part? अब आप पूछ रहे मॉर्गेज क्या होता है? Is that your question? अच्छा, तो देखिए आप मॉर्गेज में अपना ही सामान दे रहे होते हैं. द डिफरेंस मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे हैं कोलैटरल और मॉर्गेज में डिफरेंस क्या है. मॉर्गेज में आपको जो क्या बोलते हैं लोन मिल रहा है या जो पैसा मिल रहा है वो एक्चुअली जो भी चीज आप रख रहे हैं, चाहे वो एक प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ लेट्स से गोल्ड लीजिए, अगर आप उसको उसके एक्सचेंज में पैसा ले रहे हैं, राइट, तो वो मॉर्गेज हुआ. लेकिन कोलैटरल का मतलब ये कि कोलैटरल कभी भी बैंक की प्रॉपर्टी नहीं हुई. कोलैटरल बैंक की प्रॉपर्टी, कोलैटरल को बैंक तभी यूज करेगा जब आपने अपना लोन जो है वो नहीं वापस चुकाया. एम आई क्लियर टू यू पार्थ? ठीक है. एनी अदर पर्सन हैज एनी अदर क्वेश्चन? अभी तक हम 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. ध्रुव, जनरल क्वेश्चंस के लिए हमारी एक वीडियो है रिगार्डिंग CS CET रजिस्ट्रेशन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन. या ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं. सुपर प्रॉफ्स का नंबर है 011411700753. मैं लिंक भी देती हूँ चैट पे. ठीक है, आप लोग हमें कभी भी कांटेक्ट करके जो भी जेनेरिक क्वेश्चंस हैं आपके पता कर सकते हैं. या हमारी यूट्यूब चैनल पे, सुपर प्रॉफ्स के चैनल पे काफी वीडियोस हैं रिगार्डिंग गाइडेंस एंड रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन. यू कैन ऑल गो टू दैट एंड look at all that information. Okay, so now I'll continue with the session. Antonym matlab opposite. Okay, words which have opposite meaning. Okay, synonym matlab words which have the same meaning. Okay, the word is audacity. आपको ये पता होना चाहिए. देखिए, whenever there is the question of what antonym or synonym, you need to know what the original word that you have to find of what it means. Okay, or in case you do not know the meaning of this word, you can also look for the meanings, okay, of the choice options. अगर आपको चॉइस ऑप्शंस के मीनिंग्स पता है तो फिर आप निकाल सकते हैं कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है या क्या तीन चार वर्ड्स मतलब ठीक है सिमिलर हैं या अलग हैं. तो देखिए हम एक एक करके बात करते हैं. ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मीन्स बोल्ड, कुछ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग विल कुछ काम होता है, दैट इज ऑडेसिटी. ठीक है. नाउ ऑप्शंस में दिखाते हैं अफेक्शनेट. नाउ हैज ऑडेसिटी, यू नो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बीइंग बोल्ड or strong willed, has that got to do anything with emotions of affectionate? Affectionate मतलब the one with affection. ठीक है, कुछ feelings के साथ. इससे तो कोई मतलब नहीं है. This is not at all neither related
एंटोनिम नॉर रिलेटेड सिनोनिम, कोई मीनिंग का सिमिलैरिटी ही नहीं है. So this is not the answer. Lavish, again lavish means particularly luxury oriented, very rich kind of thing. So this also has got nothing to do. Bravado, now see, this means bold, and bravado may mean have a similar meaning, right? Because you can see that it is from brave. All right, so even if it is not the exact synonym, it is not an antonym also. Okay, so C option is also not there. The D option is cowardice, and this is the right answer, not just because you have eliminated all other options, but because coward means someone who is weak, or scared of something, right? This is the exact opposite of being bold, that is audacity. Okay, so D option is the correct answer. Take the next question. Answering the letters promptly, apologizing for any omissions, or thanking generously for a favor are the few examples of principle in communication. What kind of principle? See, you get a mail, all right, or you get a letter, and you answer it promptly. Right? You do not make the other person wait too long. All right. Or if you have omitted something, then you apologize. Or if you have, if you are asking for a favor or someone has given you a favor, you thank them. So basically, these are all good things. These are good to have. These are basically manners of communication, also called as common courtesy. Okay. Courtesy of communication. This is these are the examples of courtesy principle in communication. Okay. Correctness has to do with the content, whether the facts that you are stating, whether the uh, 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 message that you are giving, it is true or not, whether it holds true or not, whether it is correct or not. All right. Clarity, that whatever you wanted to tell, are you able to send across your message very clearly? If I'm trying to say that A belongs to B, does that message clearly get conveyed in my mail, in my letter, in my message, in my way of communication? Okay, that is clarity and completeness. Let's say if through a mode of communication you had to tell five facts, okay, if to any mode of communication you had to convey five facts to person B, are all those five facts being covered completely or not? Okay, so if they are, then that is completeness of communication. Okay, these are the different aspects of communication, you can say. Okay, so courtesy is the one wherein you talk about politeness, you talk about manners of communication. Noise is a barrier to communication. What kind of barrier is noise? See, communication, as I said, the different aspects are include let's say clarity, completion. So it may be that someone, you know some language, English, and the person B knows only Hindi language. तो यहाँ पर लैंग्वेज ही बैरियर है. इट इज सिमेंटिक, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो उसको समझ ही नहीं आएगा. दैट इज सिमेंटिक. तो द सोशो साइकोलॉजिकल, मतलब इसको लैंग्वेज से नहीं करना या फिर शोर मच रहा है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है. बट द मेंटेलिटी, दैट इज द डिफरेंस. एंड जैसा मैंने बोला, शोर मच रहा है मतलब नॉइज. नॉइज इज अ फिजिकल बैरियर. इसमें नॉलेज का कुछ लेना देना नहीं है, पर क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिजिकल साउंड विच इज देयर, अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज देयर. Noise means disturbance. So it is a physical barrier. Okay. Next question. Always start writing your email with a, suppose na, hi, hello, or warm greetings. Right. Yeah, hope your day is going well. What is that? Warm greetings, मैंने बोला. That is a
greeting. Closing remark देखिए नाम में ही पता चल रहा है कि this you do in the end. like जब आप email end करते हो तो आप बोलते हैं ना hoping for a positive response or thanking you in advance. That is a closing response. Purpose that this email is to inform you. जैसा आप बोलते हैं चाहे ये letter हो या वो हो. You say that this is to notify you or inform you or this is to request for a 1 day leave, right? And then question to obviously simple part है. So always start writing your email with a greeting. It started with antonym. अब हम बात कर रहे हैं synonym की. Word है idiosyncrasy. ठीक है. और यहाँ पर आपको बात करनी है कि इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या है. अब ऑब्वियसली आप कहेंगे मुझे इडियोसिंक्रेसी का ही मतलब नहीं पता अगर, तो फिर मैं सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कैसे निकालूं. तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं. ठीक है, पहले मैंने देखिए एंटोनिम लेके मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप वर्ड के मीनिंग पे जाएं और फिर उससे कंपेयर करें. अब हम बात करते हैं कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आप ऑप्शंस को देख के कैसे आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला मीनिंग वर्ड है अफेक्शनेट. ठीक है, this this has got to do something with emotions, right? Again, कि कैसा are you an affectionate person. दूसरी बात ये कि this is an adjective. ठीक है, ये एक किसी specific person के लिए यूज हो सकता है to describe the person. However, idiosyncrasy is an act. ठीक है, कि it is a thing. ठीक है, it is not an adjective. अगर ऐसा होता इडियोसिंक्रेटिक तो फिर ये डेफिनेटली एडजेक्टिव हो सकता था. ठीक है, बट इडियोसिंक्रेसी. ठीक है, Dear Sayed, if you are feeling that the session is very boring and you don't want to study, then you can leave. Studies may not always be interesting. This is for your own benefit that we are conducting free sessions. And if you have something more important to do, then you can leave. If is everyone else fine with the pace? सब लोगों को ठीक लग रहा है सेशन, स्पीड एंड कंटेंट? यू कैन टेल मी ऑन चैट सो दैट अगर कुछ चेंज करना है तो मैं कर लूंगी. Alright, Dhruv says yes. How about others? Minali also finds the session nice. Ambika, all right. So in case अगर आप लोग को लगता है कि I need to change something, you can send me your feedback. Thank you, Harshit. And I will try to incorporate it in the next webinar or session. As far as Syed is concerned, I think he has left. So no worries. ठीक है, पढ़ाई हम अपने लिए करते हैं. हमें अगर अच्छा लगता है, हमें पढ़ना अच्छा लग रहा है तो हमारा ही फायदा होगा, राइट? तो ठीक है, देन आई विल कंटिन्यू. आज जो है मैं पूरे सेशन में अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. मैं नहीं चाहती कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाए, बहुत ज्यादा देर तक आप पढ़ते रहें, फिर बोरिंग आप लोगों को भी लगने लगे. और नेक्स्ट सेशन जो है हम कल सेम टाइम पे 5 बजे कंटिन्यू करेंगे. तो ये पूरा मॉक टेस्ट जो है 35 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज काफी डिटेल में सारा डिस्कशन हम लोग आज और कल में कंप्लीट कर लेंगे. ऑलराइट, सो आई विल कंटिन्यू नाउ. Is not an adjective. ठीक है, तो अफेक्शनेट नहीं हो सकता. टॉर्मेंटिंग, प्रीपोस्टरस एंड एक्सेंट्रिसिटी. अब देखिए यहाँ पर अगर आपको एक्सेंट्रिसिटी का भी मतलब पता हो तो भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं. इसका मतलब because eccentricity and idiosyncrasy, idio also means self related. ठीक है, कि जिसको केवल अपने अराउंड इंफॉर्मेशन पता हो. अपने से ही सेल्फ का इंफॉर्मेशन. सिमिलरली एक्सेंट्रिसिटी आल्सो मींस काफी एक्सेंट्रिक मतलब सेल्फ, revolving around self. Therefore, the answer becomes centricity. Next question is, which of these report contains information of a routine nature? देखिए routine, जब आप बात करते हैं
रूटीन की मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। आप एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात करते हैं जैसे कि एवरी वीक, एवरी डे, every 15 days, every month or every Monday, Tuesday, Wednesday, something like that, right? So time gap जो है वो every हर occurrence के बीच में same time gap है, fixed time interval है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं periodic, कहते हैं ना periodically। Similarly reports जो कि routine nature की होती हैं, they are your periodic reports, ठीक है। अब हम idiom की बात करते हैं, crocodile tear, काफी कॉमन ये ईडियम है, यू यूज इट अ लॉट। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिटेंडेड सॉरो, you show that you know you are sad. Tear denotes sadness, but crocodile means that you are just pretending it, okay, because crocodile does not have real tears, okay. So what it stands for, the meaning that it conveys is that the pretended sorrow is there, it's not the actual sorrow, okay। you sometimes students get confused कि इसका मतलब है without emotion। इसका मतलब without emotion इसलिए नहीं, because tear shows kind of an emotion which is sadness, ठीक है। तो without emotion नहीं बता रहे हैं आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो emotion shown है that is sadness, but that is not actual sadness, वो actual true sadness नहीं है, it is only pretended, okay? Next is when words are used in communication, either spoken or written. This kind of communication is known as, आप words की बात कर रहे हैं, ठीक है, you are talking, so that is verbal communication, ठीक है। Non-verbal communication can be in forms of signs, gestures, okay? That is non-verbal communication. The receiver's response or non-response to a message is called, देखिए आपने कुछ भी बोला, ठीक है, या कुछ किया and then you get response in return, that is your feedback, because the person A says hi, this the communication that B is giving back, okay, so B is giving back this communication, okay, and this is feeding, he is feeding back the communication, therefore it is called feedback, okay. Input is essentially the first message, the starting message. So basically A has started, A ने जो start किया है, that is your input message, okay? The answer is feedback. The communication within the organization is called, किसी भी organization का, चाहे आप एक स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, अगर वो इन entities के अंदर है, ठीक है, that is called इंटरनल कम्युनिकेशन। या एक बिजनेस की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो है इंटरनल कम्युनिकेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड एंटिटीज जो उसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है, उनके लिए है। सो दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बाहर भी जो लोग हैं उनके लिए ये कम्युनिकेशन, देन इट बिकम्स एक्सटर्नल, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन पीयर्स, ठीक है। कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इनफॉर्मल जैसे कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है। एंड वर्बल कम्युनिकेशन तो एनी कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो। लास्ट क्वेश्चन है, इन MIS system design, the sources of information may be categorized as, आप MIS सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सोर्सेज जो है, देखिए जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं, सोर्सेज में बी योर इंटरनल सोर्सेज, ठीक है, जैसे कि कंपनी की ही रिपोर्ट्स, ठीक है, कंपनी का ही प्रीवियस सेल्स डेटा मान लीजिए, या क्या क्या HR डेटा, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने लोग वर्किंग थे, कितने नहीं थे, ऑल दिस डेटा, क्यों, क्योंकि दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का इंटरनल डेटा है,
तो दैट इज वन सोर्स, ठीक है, इंटरनल। दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि मान लीजिए आप इंडस्ट्री की बात करते हैं अगर, या कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये डेटा बाहर से ला रहे हैं, दिस डज नॉट बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आप एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री, एक्सटर्नल फैक्ट्स को देख रहे हैं, so therefore the sources are internal and external. Okay, so the next question is the all right, so आज हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर, अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आप लोगों को क्लियर है? आप लोग चैट के थ्रू बता सकते हैं। MIS के बारे में पूछ रहे हैं आप? ओके, एक बार ये सारे क्वेश्चंस आ जाए हमारे पास, और भी क्वेश्चंस हैं तो फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। या बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं कल अपने सेशन में उनको कवर कर लूंगी, इफ नॉट टुडे। तो वट एवर क्वेश्चंस यू हैव कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, आप लोग अभी मुझसे पूछ सकते हैं। अरे किसी को कोई डाउट ही नहीं है? मुझे लगता है आप लोग ना अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे थे सेशन में, इधर उधर ध्यान था, और फिर इसीलिए आप लोग को कोई डाउट्स ही नहीं है। ऐसा है क्या, फोन में सेशन ज्वाइन करके कुछ और काम तो नहीं कर रहे थे? नो मैम, चलिए ठीक है। MIS क्या होता है? ठीक है प्रियांशी, देखिए MIS जो होता है वो एक IT का सिस्टम होता है, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा फ्यूचर में पढ़ना होगा, जैसे कि CS प्रोफेशनल में जब मैंने ITS से पढ़ाया था तो उसमें ये काफी डिटेल में था। अब तो खैर सिलेबस चेंज हो गया है, तो अब तो इट इज नॉट देयर। सेशन कल इसी टाइम पे होगा, 5 बजे ही होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 35 तक करेंगे। कल सेशन में ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में पूरा डिस्कस करूंगी पैसेज। वो मुझे लगता है आप लोगों को काफी प्रॉब्लम लगती होगी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, है ना? मतलब जब मैं अपने एग्जाम्स देती थी तो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज वाले जो क्वेश्चंस आते थे वो उतना ही डर लगता था, मतलब। तो ठीक है, अब मैं MIS का एक बार बता देती हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्रियांशी, MIS में ये होता है कि उसके अंदर ना जैसे आप अलग अलग कंपनीज के फंक्शंस हो गए, राइट? तो हर फंक्शन से इंफॉर्मेशन आती है, एंड एक कोलैबोरेटेड फॉर्म में आती है, ठीक है। तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट आए, ठीक है, या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब जैसे कि अगर आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सोर्स कहाँ है इन्फॉर्मेशन का? जैसे MIS में आप मान लीजिए अगर आपके सेल्स का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो सेल्स का तो ये है कि आपको पता है कि आपकी कंपनी में कौन सी ब्रांच में कहाँ पर कितना सेल हो रहा है ना? और जो सेल्स टीम है वो फिगर्स डालती रहेगी आपके सिस्टम में, राइट? तो ये तो हो गया इंटरनल। पर अगर आपको मान लीजिए अपने कोई ये डेटा देखना है, कोई दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटर डेटा भेज रहा है कि आपके पास कितना मतलब उसके पास कितना रॉ मटेरियल है भेजने को, या फिर कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेटस है, तो ये सारा जो डेटा है आप एक्सटर्नली, मतलब अपनी कंपनी के इकोसिस्टम से बाहर जाके जो है ये सारा डेटा ढूंढ रहे हैं, राइट? तो उस सेंस में दिस इज इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की सोर्स जो है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, आपकी कंपनी के अंदर से आ रही है या फिर कंपनी के बाहर से। रिपोर्ट्स जो हैं वो लगातार आ रही हैं या वन टाइम रिपोर्ट ले रहे हैं आप? तो पीरियोडिक रिपोर्ट्स लेते हैं MIS में। क्लियर है क्या प्रियांशी? यू कैन टेल मी। आरव, टुमारोज टॉपिक, आज हमने जो ये 35 क्वेश्चंस होते हैं ICSI का मॉक टेस्ट जो है फर्स्ट, ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, आपको ऑनलाइन मिल सकता है ICSI की वेबसाइट पे, आप लोगों ने आई थिंक उसी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस, फर्स्ट 19 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर चुके हैं, और 20 क्वेश्चन से लेके नेक्स्ट 35 तक हम कल डिस्कस करेंगे आरव, ठीक है? कल भी सेशन इसी टाइम पर होगा, 5 बजे। सत्यम, कैन यू टाइप दिस ऑल आउट ताकि लोगों को सबको पता चल जाए? कल, अच्छा, आई थिंक सत्यम इज नॉट हियर, ठीक है, तो कल भी सेशन 5 बजे ही होगा, ठीक है। एंड हम लोग नोटिफिकेशंस आपको फेसबुक पे अपने ऐप डाउनलोड कर रखी है अगर सुपर प्रॉफ्स की, तो जितने भी सेशंस, फ्री सेशंस हमारे होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। आपको बस प्ले स्टोर पे जाके सुपर प्रॉफ्स टाइप करना है, और सुपर प्रॉफ्स ऑनलाइन कोचिंग करके आएगी, उसमें आपको डेमो भी दिख सकता है, और ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आपको रोज नोटिफिकेशन भी आएंगे जो भी फ्री सेशंस हैं। अब से लेके पूरे नेक्स्ट 7-8 डेज तक ये मॉक टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चलेगा।
एंड उसके बाद काफी थ्योरी पार्ट जो है हमारे सारे प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ द थ्योरी पार्ट इन 3 सेशंस। ठीक है प्रियांशी, बिल्कुल दिस इज द राइट टाइम। अभी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी या जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी। ठीक है, और CSCET का सिलेबस ऐसा है कि आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके नवंबर का भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, ऑल यू नीड इज प्रॉपर गाइडेंस। आप ऑनलाइन कोर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर अगर आपको खुद ही पढ़ना है तो आप ऐसे फ्री सेशंस वगैरह ज्वाइन करके और अपने आप पढ़ सकते हैं। हाउएवर वी ऑलवेज जैसे हम लोग स्टूडेंट से जो फीडबैक लेते हैं, अभी जो कल रिजल्ट आया है उसमें भी हमको जो फीडबैक मिला है वो यही है कि चाहे तो पढ़ाई खुद भी कर सकते थे, लेकिन छोटे टाइम में मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है तो पढ़ाई बड़ी आसानी से और अच्छे से हो जाती है। तो जो ऑनलाइन कोर्स है वो काफ़ी हेल्प करता है, स्पेशली पीछे जैसे लॉकडाउन था, राइट? तो लॉकडाउन में लोगों को काफ़ी हेल्प मिली ये सेशंस के थ्रू। प्रियांशी, जो ऑनलाइन कोर्स है वो तो पेड ही है। ठीक है, ये जो सेशंस है ये हमने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए फ्री सेशंस रखे हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम्स के वो नहीं देते हैं ICSI। वी आर ट्राइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन मोस्टली जैसे जितना फीडबैक मिला है, दीज मॉक टेस्ट हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कम इन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, तो आपका जो मॉड्यूल हुआ या फिर ये जो मॉक टेस्ट हुए, इनके डिस्कशन के थ्रू आपको काफ़ी हद तक सिलेबस कवरेज हो सकता है। जी बिल्कुल होंगे, लीगल एप्टीट्यूड के होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, इकोनॉमिक्स के होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट डिस्कशन होंगे। पर हम एक या दो मॉक टेस्ट ही डिस्कस करेंगे बिकॉज द कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट का जो डिस्कशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन कोर्स दैट वी हैव एट सुपरप्रॉफ। ठीक है, उसमें पूरा सारे 10 मॉक टेस्ट का डिस्कशन कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। एबिट, देखिए हमारा जो कोर्स है दैट इज ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। ठीक है, उसके अंदर मॉक टेस्ट जो डिस्कशन है वो अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वो आता रहेगा, बट अदरवाइज क्लासेस आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस। आपको फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले करना है, आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है, आपको वो नहीं स्किप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप है तो आपको वीडियो डाउनलोड करके रखनी है ताकि जब इंटरनेट ना आए तब पढ़ना है, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लासेस के लिए आपको वेट करना है कि कब प्रोफेसर आगे पढ़ाएंगे तभी मैं पढ़ूँ। ठीक है, क्लासेस आर ऑलवेज देयर। आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यू कैन स्टडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सुपर प्रॉफ्स, let me send you the link. 5 p.m. tomorrow, same link to join. Okay, and you want, मैं आपको ऐप का लिंक दे देती हूँ। राइट, ठीक है, दिस इज द लिंक जहाँ से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड फोन्स के लिए। और कोई क्वेश्चंस? Are there any more questions? How to start your course? प्रियांशी, आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए एंड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट देन, इफ इट इज ऑलराइट, आज हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं। कल सेम टाइम पे 5 बजे शाम को विल स्टार्ट। फाउंडेशन का कोर्स भी है निशी, and again you can call the same number and take all the information. All right, so thank you everyone for being so attentive in this session, and
I hope this session and the whole series will be helpful for you. All right. Thank you and have a nice day.